Good morning, ninth class students. Dear students, let's start our today's topic. Our today's topic is electronic spreadsheet. Okay, OpenOffice Calc. Spreadsheet packages are commonly used for keeping data, displaying organized data, generating results, planning budgets, making annual reports of business organizations, generating salary statements, doing tax calculation, etc. All the work we can do with the help of spreadsheet. Features of spreadsheet packages. With the help of a spreadsheet package, we can do bulk volume. Bulk volume of data can be kept and handled in easier way. If we have bulk data, heavy data, easier way we can handle in this application. Complex and long calculation can be solved accurately. Mathematical calculations, comparison calculations. Data can be exported in tabular or pictorial form. That is in the form of charts or graphs. We can store our data. The formula for calculation can be automatically applied to any data even when the data value changes. If the data value changes, the result will be changed accordingly. Let's learn it with the help of practical. तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करने के लिए need to open, make a double click on open office icon. When I double click on this icon, yes, select on spreadsheet option here. This window is opened here. MS Excel and OpenOffice Calc are the common spreadsheet packages that are used today. OpenOffice में Calc हम यूज करते हैं और MS Office के अंदर हम MS Excel यूज करते हैं. ये हमारा OpenOffice Calc application है. OpenOffice Calc has been developed by Sun Microsystems. It is available free of cost and can be easily डाउनलोडेड फ्रॉम www.openoffice.org साइट पर जाएंगे और वहां से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये हमारा हमेशा ही ओरिजिनल फॉर्म में होगा. टू ओपन कैल्क इन विंडोज, डबल क्लिक मैंने अभी ओपन ऑफिस के आइकन पर किया था. ठीक है, दिस विंडो विल बी ओपन. गॉट इट. एक ब्लैंक विंडो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है. चलो इसके वन बाय वन करके कंपोनेंट्स लर्न करते हैं. First of all, control button. These buttons are known as restore, move, size, maximize, minimize करने के लिए हमारे पास control button है. And at the right hand side we have also control button, minimize, maximize or restore or close. Okay, to activate the control button, shortcut key we have, that is Alt plus space bar key. Okay, means press Alt plus space bar key. The bar is activated here. If you want to minimize it, press the N. Okay, N is underlined here. If you want to close, press the C button because C is underlined here. For maximize X, for size change करने के लिए S, move करने के लिए M. Which letters are underlined? We need to press all these letters. Got it? Then below the control button we have menu bar. It contains different menus which have many options to perform various operations. बहुत सारे operations हमारे पास हमें करने होते हैं यहाँ पर और उनको करने के लिए जिन options की हमें requirement होती है all the options are available under the menu bar. Below it we have standard toolbar. Okay, it contains shortcut buttons और frequently used options. Okay, जो हम जल्दी से options use करते हैं उनके buttons यहाँ पर available होते हैं. Below the standard toolbar, this bar is known as standard toolbar and it is our formatting bar. Okay, below the standard toolbar, formatting bar. Formatting bar, it contains shortcut buttons which provide quick access to frequently used formatting options that help to change the appearance of the text or data inside the sheet. Sheet के अंदर जो भी हमारा data है, जो भी हमने text insert किया, if we want to change the appearance of data, we can change our data's appearance through the formatting toolbar. Got it, students? Now we have this one. Below the formatting toolbar, we have name box. What is the use of name box? Name box, it contains the address of the current cell or active cell. करंट सेल और एक्टिव सेल का एड्रेस होता है. दिस सेल इज आर करंट सेल. ये हमारी एक्टिव सेल भी और करंट सेल भी है. वी कैन सी इट्स एड्रेस C6. C इज द कॉलम लेबल और ये 6 जो है हमारा रो का नंबर है. गॉट इट.
देन वी हैव सेल एड्रेस। सेल एड्रेस में आपका क्या है, B8, ठीक है, F15, ये भी क्या है आपका, ये हमारा क्या है, ये सेल एड्रेस होता है जो हमारा नेम बॉक्स के अंदर अपीयर्ड होता है। सेल पॉइंटर, ये हमारा सेल पॉइंटर है, जो ये पॉइंटर है, जो हमारे कर्सर है, दिस इज नोन एज, ये हाईलाइट रहेगा सेल पॉइंटर, यहाँ पर पड़ा है आपका सेल पॉइंटर, ये हाईलाइट रहेगा, ठीक है, बोल्ड बॉर्डर के साथ ये सेल पॉइंटर है। देन अभी नेम बॉक्स या नेम बॉक्स के साथ ही हमारे पास अब फॉर्मूला बार, फॉर्मूला दैट परफॉर्म्स डिफरेंट कैलकुलेशंस इन सेल, सेल्स के अंदर जो डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगे उनका फॉर्मूला वी कैन सी फ्रॉम हियर फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के अंदर हम एंटर करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, और सेल्स की कैलकुलेशन को हम यहाँ पर देख सकते हैं, और फॉर्मूला जो भी अप्लाई किया वी कैन सी द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार, ओके। आफ्टर दिस वी हैव शीट टैब। शीट टैब आपके पास ये है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, 3 sheet tabs by default we have, and we can insert here 255 sheets, sheet tab, got it। now rows and columns, rows and columns की अगर हम बात करेंगे, these are known as, जो ये आपके पास horizontal lines हैं, these lines are known as rows, और जो vertical lines है ये lines आपकी क्या है, columns हैं। horizontal lines, rows are the set of rectangular boxes, ये आपका, ये जो है ये हमारे रोज हैं जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, और दैट आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, एक दूसरे के ऊपर जो हमारे ये प्लेस्ड हैं। और जो हमारे कॉलम्स हैं, कॉलम्स क्या हैं हमारे, ये भी वर्टिकल सेट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, ये वर्टिकल सेट्स हैं आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स वी हैव इन अ शीट, करंटली वी आर ऑन शीट नंबर 1, शीट नंबर 1 के ऊपर है। तो देखिए अभी हम रो नंबर 1 के ऊपर, एक ही शीट की बात यहाँ पर हो रखी है। अगर मुझे चेक करना है हाउ मेनी रोज आर हियर, तो मैं कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की प्रेस करूंगी, वी कैन विजिट एट द बॉटम ऑफ द शीट एंड द लास्ट नंबर ऑफ द रोज, 10,48,576 रोज वी हैव। अगर मुझे टॉप में सेल नंबर 1 पर जाना है, मैं क्या करूंगी, कंट्रोल की के साथ अप एरो की करूंगी। यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव 1024 कॉलम्स। अब ये क्वांटिटी हमें काउंट करने पड़ेंगे, ये लेबल्ड होते हैं ABCD से, जो हमारे नंबर में थे रोज, तो विजिट करने के लिए लास्ट कॉलम पर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, AMJ इज द एड्रेस ऑफ लास्ट कॉलम, और राइट एरो से हम लेफ्ट तरफ मूव करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट एरो से लेफ्ट में मूव करने के लिए, राइट एरो से लास्ट कॉलम पर जाने के लिए, ठीक है। नाउ वी हैव वर्कशीट and workbook. What is a worksheet? What is a workbook? A workbook consists of worksheets. जो workbook होते हैं उसमें worksheets होती हैं। अब जैसे ये फाइल है, दिस फाइल इज नोन एज आर वर्कबुक फाइल, ये हमारी अनटाइटल्ड 1 के नाम से वर्कबुक है, और इसके अंदर वर्कशीट्स है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, मैनी शीट्स वी कैन इंसर्ट, बहुत सारी शीट्स हम यहाँ से इंसर्ट भी यहाँ कर सकते हैं। और जब मैं इस फाइल को सेव कर दूंगी, सपोज आई क्लिक ऑन फाइल बटन एंड मैंने सेव किया, गिव अ नेम, इस फाइल को मैंने ABCDEFG ये नाम मैंने यहाँ पर दे दिया, और मैं सेव कहाँ पर कर रही हूँ, डी ड्राइव के अंदर, मैंने इसको डी ड्राइव में सेव कर दिया, ठीक है। तो इट मीन्स मेरी वर्कबुक है ABCDEFG के नाम से मेरी .ods, ods इज द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से क्या पता चलता है, इट आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फाइल, ये फाइल हमारी स्प्रेडशीट की फाइल है, ठीक है। अगर होता .odt ये हमारी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइटर की फाइल होती, ठीक है, मीन्स एक्सटेंशन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। तो हमारी वर्कबुक है ABDEFG, और इसके अंदर शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये हमारी वर्कशीट्स हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स आर नोन एज अ वर्कबुक, ठीक है। देन वी हैव सेल, सेल क्या होगा, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ सेल, ये सेल है आपके, ये सेल है, ये सेल है, ये हमारी सेल होती है। तो कंपोनेंट ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। देन वी हैव टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स, ठीक है। टू बिगिन वर्किंग विद अ स्प्रेडशीट पैकेज द यूजर हैज टू फीड डेटा, डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम ऑफ फॉर्मूला। तो न्यूमेरिक के अंदर हम, जैसे हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड होता है, लेफ्ट राइट साइड में होता है कीबोर्ड के, तो 0 to 9 डिजिट वो आ जाते हैं इसके अंदर।
फिर हमारे पास आता है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, माइनस, प्लस, ये सारे के सारे साइन हमारे न्यूमेरिक डेटा के अंदर होते हैं। आफ्टर दिस वी हैव अल्फा न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंदर अल्फाबेटिकल जो हमारे टेक्सचुअल डेटा जो होता है, टेक्सचुअल डेटा आ जाता है। एंड विद टेक्सचुअल डेटा डिजिट्स, स्पेसिस, डबल कोड्स, ये भी हमारे अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंदर आते हैं। डेट एंड टाइम, वी कैन इंसर्ट डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम हम सीरियल वैल्यूज में भी जैसे भी हम करना चाहें वैसे ही हम डेट एंड टाइम जो है वो इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। देन वी हैव फॉर्मूला। Formula is an expressions which help to perform arithmetical calculations and also execute non-arithmetical tasks. कंपैरिजन करने के लिए ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में या फिर कैलकुलेशंस करनी अर्थमेटिक, तो हम फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स वी हैव इंसर्ट हियर 4 टाइप्स ऑफ डेटा, न्यूमेरिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा, डेट एंड टाइम एंड फॉर्मूला। नाउ क्रिएटिंग अ वर्कशीट। अभी हमने एक वर्कशीट क्रिएट कर ली है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये हम एक वर्कशीट यहाँ पर क्रिएट कर चुकी है। ठीक है, दिस सेल इज नोन एज एक्टिव सेल। ये सेल जो हमारी सिलेक्टेड सेल है, ये सेल हमारी क्या है, एक्टिव सेल है। ठीक है, और यहाँ से हम टाइटल बार से हमें पता चल जाता है कि ये वर्कबुक है और इस वर्कबुक का नाम जो है ABDEFG है। ठीक है, एंटरिंग डेटा इन वर्कशीट। हाउ टू एंटर डेटा इन वर्कशीट। अभी मैं यहाँ पर डेटा एंटर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लेते हैं, मैंने लिया एक छोटा सा रिकॉर्ड बना लेते हैं, नेम। मैं कुछ स्टूडेंट्स का नेम डाल रही हूँ यहाँ पर। मैंने ये रिकॉर्ड डाला। ठीक है, इनके मार्क्स में यहाँ डाल लेती हूँ। सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ मैंने लिया। अनदर सब्जेक्ट के मार्क्स हम इंसर्ट करते हैं। अब मैंने ये डेटा यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के मार्क्स मैंने ये, तो ये होता है हमारा टू वर्क इन कैल्क डेटा हैव टू बी एंटर्ड। टू बिगिन एंटरिंग द डेटा, क्लिक ऑन द सेल। किसी भी सेल पर जहाँ से हम फ्रॉम वेयर वी वांट टू इंसर्ट डेटा, उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, वहाँ से हम जस्ट नीड टू टाइप आवर डेटा। ओके, मूविंग इन अ वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर मूव करना। हाउ टू मूव इन अ वर्कशीट यूजिंग माउस। माउस की हेल्प से अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पर हूँ, सिंगल सेल मैंने सिलेक्ट की हुई है। क्लिक ऑन द स्पेसिफाइड सेल, मैंने क्लिक कर दिया। अब मल्टीपल सेल पर मूव करना है तो मैं कैसे करूँगी, माउस की हेल्प से। तो मैं ये लो मल्टीपल सेल्स पर मूव कर लिया, ड्रैग करके मैं मल्टीपल सेल्स पर जा सकती हूँ। देन ए रो को मुझे मूव करना है। मैं क्या करूँगी यहाँ पर, फॉर रो क्लिक ऑन द रो हेडिंग पर क्लिक किया। फॉर कॉलम क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग। मल्टीपल कॉलम्स के लिए मैं कर सकती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट लेटर को लिया और ड्रैग कर दिया, जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है कॉलम को सिलेक्ट करने की, वहां तक हम चले गए। सिमिलरली रो के लिए फर्स्ट रो पर क्लिक किया नंबर पर, और उसके बाद ड्रैग करके जिस पे डायरेक्शन में हमें मूव करना है उसी डायरेक्शन में हम मूव जो है वो कर सकते हैं। फॉर होल वर्कशीट, पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर, फॉर होल वर्कशीट क्लिक ऑन द अपर मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट। ये वाला कोड, पूरी वर्कशीट हमारी इससे क्या होगा, पूरी वर्कशीट विल बी सिलेक्टेड यूजिंग द कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से टू मूव राइट, प्रेस राइट एरो और टैब, राइट एरो और I can press with the help of tab also. Got it? To move left arrow key and shift plus tab. Shift के साथ हम tab की को जो है यहाँ पर प्रेस करेंगे। Got it? To move above up arrow key. Got it? और shift enter से भी हम कर सकते हैं with the help of shift enter. To move down arrow key and with the help of enter key. Got it? One screen to the right. अब हम देखिए यहाँ पर क्या है आपका
A to G आपके पास आया, मुझे एक वन स्क्रीन राइट में मूव करनी है, Alt प्लस पेज डाउन, Alt पेज डाउन से देखिए G2M, Alt पेज डाउन, मुझे लेफ्ट साइड में मूव करनी है वन स्क्रीन, तो मैं क्या करूंगी, Alt पेज अप, Alt प्लस पेज अप, गॉट इट, मीन्स Alt और पेज डाउन से मैं लेफ्ट साइड में और Alt और पेज अप से मैं राइट साइड में मूव करूंगी। अब मुझे एक टैब से दूसरी टैब पर मूव करना है, तो मैं यहाँ पर हूँ, शीट नंबर 1 के ऊपर हूँ, शीट नंबर 3 पर जाना है मुझे, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, कंट्रोल पेज डाउन, मैं शीट नंबर 3 पर हूँ, कंट्रोल पेज अप, तो मैं शीट नंबर 2 पर दोबारा से, शीट नंबर 1 पर दोबारा से यहाँ पर आ जाती हूँ। तो द प्रीवियस ओपन वर्कबुक के लिए हमारे पास होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से हमारे पास जो पहले से ओपन है वर्कबुक, वो वर्कबुक ओपन हो जाएगी। तो सिलेक्टर एक रो को सिलेक्ट करने के लिए, जैसे अभी क्या है, अमन को सिलेक्ट किया हुआ, एक सिंगल सेल को सिलेक्ट किया हुआ, अगर मैं शिफ्ट और स्पेस बार को प्रेस करती हूँ तो मेरा पूरा कंप्लीट रो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट द कॉलम, कॉलम के लिए कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार को प्रेस करूंगी, पूरा कॉलम, पूरा रो सिलेक्ट था, मुझे तो पर्टिकुलर कॉलम, कॉलम भी सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार की से पर्टिकुलर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। पूरी वर्कशीट के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द होल वर्कशीट। देन रेंज ऑफ सेल यहाँ पर है, तो शिफ्ट के साथ जिस डायरेक्शन में आपको सिलेक्ट करना है रेंज ऑफ सेल, उसी डायरेक्शन का एरो की हम यहाँ पर मूव करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्टकट कीज टू ओपन अ न्यू वर्कबुक। अभी बताया था कंट्रोल एन से हम क्या कर सकते हैं, नई वर्कबुक ले सकते हैं। इट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू वर्कबुक। अभी हमारी ये वर्कशीट है, वर्कबुक है, तो नई वर्कबुक हमारे पास आ जाएगी। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक कंट्रोल प्लस ओ इज द शॉर्टकट की। कंट्रोल ओ से हम, जैसे ही हम कंट्रोल ओ करेंगे की प्रेस, द डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोकेशन में देख जाएंगे जहां पर भी हमने फाइल को सेव किया हुआ, तो सिलेक्ट द पर्टिकुलर फाइल एंड द फाइल विल बी ओपन। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव टू क्लोज अ वर्कबुक। वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज द शॉर्टकट की। ओके, मैं आपको बताए जा रही हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू। और टू क्विट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू। गॉट इट। टू टेक अ प्रिंट आउट कंट्रोल प्लस P is the shortcut key to take a printout. These are the shortcut keys. Now range of cell. What is the range of cell? A group of cell is known as range of cell. जो group of cell होती है हमारी, वो range of cell होती है, ये हमारी range of cells हैं। और we have three types of range of cell: vertical और column range, horizontal और row range, और mixed range of cells. Column range, कॉलम रेंज सपोज मैं यहाँ से लेती हूँ, दिस इज आवर कॉलम रेंज। ओके, वर्टिकल रेंज अगर मैंने लिया यहाँ से, इट इज जो रेक्टेंगुलर है आपका, ठीक है, मीन्स जो रो रेंज है वो रेक्टेंगुलर जो हमारा है हॉरिजॉन्टल, उसमें ये हमारी हॉरिजॉन्टल रो रेंज है। ठीक है, रो रेंज भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं, और इसको वर्टिकल रेंज भी बोल सकते हैं, और कॉलम रेंज भी जो है हम बोल सकते हैं। मिक्स्ड रेंज इज द नंबर ऑफ सिलेक्टेड सेल्स स्प्रेड अक्रॉस द रो एंड कॉलम। mixed range, this one is known as mixed range. So ये spread across the rows and spread across the column. Got it? Next topic we have, that is saving a workbook. We have done how to save. Click on file menu. File menu पर जाएंगे, वहां पर सेव कर लेंगे. Opening and existing, we have shortcut key Control plus O, and through the file menu we can open existing workbook. The workbook we have created, we have saved, and we have closed. Printing a worksheet, Control plus P is the shortcut key, and another way, click on file menu, we have print option. Okay, before print we can take a print preview. हम यहाँ से print preview भी देख सकते हैं, प्रिंटिंग के बाद हमारा पेज कैसा नजर आएगा। इट इज पेज प्रीव्यू। देखिए पेज प्रिंटिंग के बाद हमारा पेज ये नजर आएगा। यहाँ पर इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई जो है वो नहीं हुआ है। वी कैन अप्लाई द बॉर्डर हियर। यस, प्रिंटिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रिंटिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ होल शीट। मैंने लिया यहाँ पर पूरी शीट का प्रिंट आउट चाहिए।
वी कैन सी प्रिंटिंग पूरे पेज का है. इफ आई सिलेक्टेड ओनली आई वॉन्ट टू टेक अ प्रिंट आउट ओनली दिस, राम रिकॉर्ड का ही मुझे प्रिंट आउट चाहिए, देन क्लिक ऑन प्रिंट एंड ऑप्शन वी हैव दैट इज सिलेक्टेड सेल्स. मैं सिलेक्टेड सेल्स लेती हूँ. तो यहाँ पर देखना सिलेक्टेड सेल करेंगे तो जस्ट जो डेटा हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी द प्रिंट आउट ओनली सिलेक्टेड डेटा. ओके, देन वी हैव पेज लेआउट. पेज लेआउट के अंदर कितनी शीट चाहिए आपको पर पेज पर? 2 शीट चाहिए. कितनी शीट हमें चाहिए? तो हम पेज लेआउट से जो है वो चेंज कर सकते हैं. प्रिंटर अटैच नहीं है हमारे पास तो वो हम नहीं कर सकते. प्रिंटिंग हमारा हो चुका है. आप वर्किंग विद वर्कबुक, वर्कबुक के साथ वर्क करना. एज आई टोल्ड यू बाय डिफॉल्ट वी हैव 3 शीट्स, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, बट वी कैन ऐड हियर मोर देन शीट्स इफ रिक्वायर्ड. शीट ये मैंने अभी ऐड की हुई है यहाँ पर. इफ आई क्लिक ऑन हियर इट विल आस्क बिफोर करंट शीट. जो करंट शीट ओपन है उससे पहले चाहिए आपको या आफ्टर में चाहिए? कितनी शीट्स इंसर्ट करने हो? नेम ऑफ द शीट, शीट 5 यहाँ पर गिवन है तो मैं इसका नेम सपोज में दे रही हूँ यहाँ पर एबीसी. मुझे एबीसी के नाम से शीट चाहिए तो मैंने दिया एबीसी. आई कैन सी द नेम ऑफ शीट हियर. अनदर वे वी हैव टू इंसर्ट अ शीट. इंसर्ट मेन्यू के थ्रू भी हम शीट को यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी सेम आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा. यहाँ से भी हम शीट को इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं. डिलीटिंग शीट्स. I want to delete this one sheet. Make a right click on this sheet and delete sheet. तो sheet will be deleted. वो sheet हमारी delete हो जाएगी. Renaming a sheet. I want to rename this sheet number 3. Sheet number 3 को मुझे जो है यहाँ पर rename करना है. Make a right click on this sheet and change the name. जो भी name हमें चाहिए तो आप यहाँ पर name जो है वो change कर सकते हो. Click on OK button. Got it? Then moving a sheet. sheet को हम उठा के भी मूव कर सकते हैं. अब मैंने ये किया है. शीट नंबर 1 की मैंने पोजीशन चेंज की है. शीट नंबर 55 जो लिया था उसकी मैंने पोजीशन चेंज की है. अनदर वे वी हैव राइट क्लिक एंड मूव एंड कॉपी. तो शीट को कहाँ पर लेके जाना है? ये तो हमारी वर्कबुक है तो इंसर्ट बिफोर. किस शीट से पहले चाहिए आपको? मेरे को शीट नंबर 1 से पहले चाहिए तो शीट नंबर 1 से पहले शीट 55 यहाँ पर आ जाएगी. ओके, देखो यहीं पर आ जाएगी. फिर मैं अगर चाहती हूँ यहाँ पर मूव अ शीट एट द एंड में आ जाएगी. गॉट इट? इफ आई वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस शीट, जो डाटा है उसकी भी कॉपी हो जाएगी. मैं कॉपी करती हूँ तो जो शीट है शीट 55 एक ये रही आपके पास और इसकी कॉपी भी हमारे पास आ जाती है. ये -2 करके आपके पास _2 करके इसकी कॉपी जो है यहाँ पर आ जाती है. वांट टू डिलीट दिस वन, डिलीट भी हम इसको कर सकते हैं. अभी हमारी डिलीट हो चुकी है. नाउ वी हैव हाइड अनहाइड शीट. शीट को हाइड करना, अनहाइड. एबीसी शीट को हाइड करना है. क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू एंड अंडर द शीट ऑप्शंस वी हैव हाइड. एबीसी शीट इज हाइड हियर. ओके, 55 को हाइड करना है मुझे. अगेन क्लिक ऑन हाइड शीट. इफ आई वांट टू शो, अब मुझे उन शीट्स को शो करना है किसी पर्टिकुलर शीट को तो मैं दी फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर शीट है मैं शो करूंगी. विच शीट आई वांट टू शो? आई वांट टू शो शीट नंबर ABC. द शीट विल बी अपीयर. वो शीट हमारे पास जो है यहाँ पर आ जाएगी. गॉट इट? नाउ क्लास वी हैव नेविगेशन. नेविगेशन के लिए हमें नेविगेट करना है कहीं पर. तो नेविगेशन, एक तो आपके पास नेविगेशन है व्यू के अंदर नेविगेटर. ये नेविगेटर हम कर सकते हैं यहाँ से. B9 ये तो इसने गिवन किया है यहाँ पर. ठीक है, तो आप कहाँ पर जाना चाहते हो? C9 पर जाना चाहते हो, C10 पर जाना चाहते हो, कहाँ पर जाना चाहते हो? वहीं आपका नेविगेशन जो है वो आ जाएगी. एक वे तो हमारे पास ये है. अनदर वे कंट्रोल F कीजिए आप. फाइंड और रिप्लेस से एक पर्टिकुलर वैल्यू इफ वी वांट टू फाइंड, जो हमें फाइंड करनी है तो उसको भी वो फाइंड करके दिखा देगा. ठीक है, फाइंड. तो ये इसमें जितनी जगह थी वैल्यू 23 फाइंड कर दी. नाउ वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर ऑल्सो. यहाँ से भी आप वैल्यूज डालोगे या कोई पर्टिकुलर डाटा डालोगे तो डाउन की तरफ फाइंड करेगा और ये नेक्स्ट अप की तरफ फाइंड प्रीवियस की तरफ फाइंड करेगा. गॉट इट? देन एडिटिंग कंटेंट्स इन अ वर्कशीट. वर्कशीट के अंदर कंटेंट को एडिट करना. ठीक है, एडिट करने के लिए मुझे 23 है, यहाँ पर मुझे 43 चाहिए. तो जस्ट आई नीड टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर शीट एंड जस्ट नीड टू टाइप द कंटेंट, एडिट कंटेंट. बट आई वांट टू इंसर्ट 230 हियर.
मुझे इसके पूरे कंटेंट को चेंज नहीं करना है। वी हैव टू वेज, प्रेस F2 फंक्शन की फ्रॉम द कीबोर्ड और मेक अ डबल क्लिक। या तो F2 फंक्शन की कीजिए प्रेस कीबोर्ड से, या फिर डबल क्लिक कीजिए की माउस से, तो आप वहां पर फंक्शन को एडिट जो है वो वैल्यू को एडिट जो है वो कर सकती हूँ। मॉडिफाई द कंटेंट हमारे हो चुके। इंसर्टिंग सेल्स, मुझे यहाँ पर सेल चाहिए, सेल इंसर्ट करनी। हाउ वी कैन इंसर्ट द सेल हियर? तो इंसर्ट मेन्यू में जाके या फिर राइट क्लिक करके, राइट क्लिक से इंसर्ट करेंगे। अनदर वे वी हैव क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू, सेल ऑप्शन इज हियर, इट विल आस्क शिफ्ट सेल डाउन, बाकी सेल्स को डाउन में शिफ्ट कर दे। ओके, अब उसने बाकी को डाउन में शिफ्ट कर दिया और ये सेल हमारे पास ब्लैंक आ जाती है। ठीक है, एक ऑप्शन है आपके पास क्लिक ऑन सेल्स, मैं यहाँ पर राइट में करना चाहती हूँ, बाकी को मैंने राइट में निकाल दिया, ये है हमारे पास। देन वी हैव सेल्स, अगर आपको एंटायर रो करना है, वी कैन इंसर्ट एंटायर रो, पूरा रो हमारे पास आ जाएगा। इफ वी वांट टू इंसर्ट एंटायर कॉलम, वी कैन इंसर्ट एंटायर कॉलम हियर, हमारे पास पूरा कॉलम भी इंसर्ट होके आ जाएगा। गॉट इट? आफ्टर दिस वी हैव, इफ यू वांट टू डिलीट, डिलीट भी हम करना चाहें तो उसके लिए डिलीट, डिलीट में पूछेगा जो आपके कंटेंट्स हैं उनको लेफ्ट में करें, शिफ्ट, देखो लेफ्ट में हो गए। ठीक है, अगर आप चाहते हो डाउन में करना डिलीट, यहाँ से अप करना चाहते हो तो 230 और 67 अप हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप जस्ट कंटेंट को डिलीट करना चाहते हो, डिलीट कंटेंट, जस्ट कंटेंट कंटेंट डिलीट होंगे, बाकी आपका ब्लैंक एरिया यहाँ पर रहेगा। व्हाट इट नाउ डिलीटिंग सेल, कॉपी द कंटेंट, कॉपी कंटेंट बहुत इजी है हमारे पास। सिलेक्ट द सेल, जो आपको सेल्स को जिनके कंटेंट कॉपी करना उनको सिलेक्ट करेंगे, या तो यहाँ से कॉपी कीजिए स्टैंडर्ड टूल बार के थ्रू से, एडिट मेन्यू में भी हमारे पास कॉपी की कमांड है, और शॉर्टकट की वी हैव कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। ठीक है, तो जहां भी आपको पेस्ट करने हैं कंट्रोल वी, यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, एडिट मेन्यू से भी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी से हमने डुप्लीकेट कॉपी कर लिया डेटा को। इफ वी वांट टू रिमूव, we want to change the location of our data, then cut command we will apply here, cut, यहाँ से कट कीजिए, सिमिलरली एडिट मेन्यू, शॉर्टकट की, ओके, और मैं यहाँ पर करती हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी से। ठीक है, नाउ क्लास डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स, कॉलम्स और रोज को हम डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉलम, रोज मैंने सिलेक्ट किए और इन रोज को मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकती हूँ। कॉलम में डिलीट करना चाहूँ तो मैं कॉलम डिलीट करना चाहती हूँ, कॉलम डिलीट करना है, कंटेंट डिलीट करना है, कॉलम तो करूँगी पूरा कॉलम हो जाएगा, कंटेंट करूँगी जस्ट कंटेंट विल बी रिमूव। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। और अगर मुझे इंसर्ट करना है, जैसे मैंने किया था, राइट क्लिक किया, इंसर्ट हो गया कॉलम। ठीक है, मुझे 2 कॉलम इंसर्ट करने हैं, मैंने सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया, 2 कॉलम विल बी इंसर्टेड हियर, सिमिलरली वी कैन इंसर्ट रोज। अब मैंने इतने सारे रोज को सिलेक्ट किया, 4 रोज आई हैव सिलेक्टेड हियर, क्लिक ऑन इंसर्ट, मैं इंसर्ट पे, और 4 रो विल बी सिलेक्टेड, मींस डिपेंड ऑन हाउ मेनी कॉलम्स और रोज वी हैव सिलेक्टेड, तो उसी के अकॉर्डिंग रोज और कॉलम्स यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। और इंसर्ट को हम इंसर्ट मेन्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम। द लास्ट वन ऑप्शन वी हैव अनडू एंड रीडू, तो हम कर ही रहे हैं, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। फॉर अनडू कंट्रोल जेड वी विल यूज, मीन्स अनडू कमांड हेल्प्स द यूजर टू रिवर्स द सीरीज ऑफ एक्शंस, और जो रीडू कमांड होती है हेल्प्स टू रिवर्स द एक्शंस दैट हैव बीन एग्जीक्यूटेड बाय द अनडू कमांड। ठीक है, अब जैसे मैंने ये डाटा डिलीट कर दिया, अब मुझे ये वापस चाहिए तो मैं कंट्रोल जेड अनडू करूंगी, सपोज मुझे नहीं चाहिए मैं कंट्रोल वाई कर दूंगी, ये रीडू में आ जाएगा हमारे अनडू के इफेक्ट को कम करने के लिए। गॉट इट? अब है सेल्फ फॉर्मेटिंग, सेल्फ फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है आपके पास। मैंने सेल को सिलेक्ट किया, मैं फॉर्मेट के अंदर गई और यहाँ पर सेल के अंदर जाती हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए मुझे सेल के ऊपर बॉर्डर चाहिए। अब मैं यहाँ से सेल के ऊपर बॉर्डर का बताती हूँ आपको, ये वाला लिया मैंने, और बॉर्डर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, मैंने ये भी बॉर्डर अप्लाई किया। प्रीव्यू जब देखा था ना हमने, प्रिंट प्रीव्यू, पेज प्रीव्यू देखा था, मैंने कहा था ब्लैंक आपके पास आया, बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ, तो अब आपके पास बॉर्डर अप्लाई होगा, वो हम प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ गया हमारे पास। ठीक है,
तो ये हम प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं और फॉर्मेट के अंदर सेल से भी हम ये सब अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट के अंदर सेल है, यहाँ से देखिए आप, नंबर, फॉन्ट जो है हमारा, यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करनी है हमने, ठीक है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी अप्लाई करना है, यहाँ से साइज चेंज करना चाहें तो कर देंगे। देखिए सेम अपीयरेंस हमारी यहाँ पर होगी। सेल फॉर्मेटिंग, फॉन्ट इफेक्ट जो देना चाहते हैं, कलर चेंज करना है हमने अपनी सेल का, ठीक है, और यहाँ से ओवरलाइन, देखो ये लाइन आपको शो हो रही है, स्ट्राइक थ्रो, ये वाली लाइन अगर अप्लाई करना है, ठीक है, कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड टू अप्लाई, ठीक है। अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ, ये ले लिया मैंने साइज, इधर से मैं इनका भी कर देती हूँ। अब इसका अलाइनमेंट देखना। अलाइनमेंट फॉर्मेट के अंदर सेल से भी कर सकते हो आप लोग, और यहाँ से भी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, और ये है अलाइन सेंटर वर्टिकली, ये हमारा अलाइनमेंट हो जाएगा। अब अलाइनमेंट आपने डिग्रीज के अकॉर्डिंग करना है, वर्टिकली स्टेप में ये भी कर सकती है। प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमारी सेल्स के यहाँ से भी, या फिर हम सेल फॉर्मेट में जाके फॉर्मेटिंग सेल इस जगह से भी हम देखो ABCD में व्यू करेगा, ये उसी के अकॉर्डिंग आपका हो जाता है सेल फॉर्मेटिंग। गॉट इट। इसके ऊपर कलर वगैरह बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर कलर मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैं ये वाला ले लेती हूँ बॉर्डर कलर। ओके मैंने किया तो बॉर्डर कलर वही आ जाता है। फिर सेल फॉर्मेटिंग में गई, यहाँ पर किया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर सपोज मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड कलर भी ये आ जाता है यहाँ पर। ये हमारे सेल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। सेल फॉर्मेटिंग की सारी कमांड आपने जो है यहाँ पर करके देखनी है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मेट के अंदर से भी आपने सेल फॉर्मेटिंग की जितने भी ऑप्शंस है वो सारे के सारे ऑप्शंस है, लास्ट सेल प्रोटेक्शन को छोड़ के बाकी सारे आप करके ओके। So students, we have completed our today's topic. Thank you.